Good morning to one and all present over here. I, Avir Basu, VCA third year, welcome you all for the Ideathon 2024. I would like to thank faculty members, volunteers, organizing committee for being present, and to all the participants for their participation in this event. Without any further ado, as we are running late for the same event, I would like to call upon Amit Rai sir, Dr. Amit Rai sir, as well as HOD sir for the Diya lighting ceremony. Thank you so much, sir. No event starts without the blessings of our seniors. So I call upon Dr. Mitra sir for a few words. Good morning, students. So the students are participating from BCA, BBA, and some of the students are from BGMC too. And BCom too. So good morning, students. Today you are going to participate in an intellectual event. That is Ideathon. That means we are going to represent a unique idea, and that idea can be further transformed into the actualization through real feasibility test. So I would like to congratulate you all to being the participant of this particular competition. Because if I talk about today's GDP, have you ever thought about this GDP? So in a GDP, there are three kinds of forces: primary, secondary and tertiary forces. Primary forces are those forces in which the agricultural community do their services. Secondary is manufacturing, and tertiary is the industry, those who are dealing in services like education. We are giving you services. Railway, you purchase the ticket, travel, railway gives you the services. Telecom industry gives you the services. So if I talk about the country, those who are developing, they based on primary sector. Those who are developed, those totally based on tertiary sectors. So now we are neither developed nor we are underdeveloped. We are somewhere in between developing and developed state. And for that purpose, we are keep on organizing such kind of events where we try to put the maximum working force to brought out from the primary sector and to make it into the stream of tertiary force. तो उसमें क्या है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम प्राइमरी सेक्टर से निकाल के टर्शियरी सेक्टर में डालेंगे, आपका देश उतना ही जल्दी डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आएगा। तो इसका प्रॉपर ऑब्जेक्टिव ये है, आइडियाथॉन, हैकाथॉन, बिजनेस मॉडल. So if you are just participating in such kind of event, doesn't think that it is a normal event. Even you are the part of some elite category, those who are not participating. You are having at least such a thought that you can represent yourself in a unique way and you can have a best idea that you are representing. So wish you all the best for your today's session. Thank you. Thank you so much, sir, for motivating our participants. Without any further ado, I would like to call upon our first team for the participation. It's Team Firefighter Robot. Team leader Rohan Chandra. Good morning to the all the faculty members and all the my friends who are assembled here. We are team debuggers. I am Rohan Chandra from BCA second year with my teammate Ritik Chaudhary, BCA second year. We are here with our project Firefighter Robot. Basically ये एक रोबोट है जो कि इंस्ट्रक्शन पे बेस्ड है. इसमें कुछ सेंसर्स हमने यूज़ किया है क्योंकि समटाइम्स हम देखते हैं घर पर छोटे बच्चे या फिर जो ओल्ड पीपल्स हैं वो अकेले रह जाते हैं और किसी रीज़न की वजह से ये ऑन करो लाइट ना. किसी रीज़न की वजह से वहाँ पर शॉर्ट सर्किट या किसी रीज़न की वजह से वहाँ पर आग लग जाती है, तो वो लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और जो आप लोगों को उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है. तो उसके लिए हमने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक रोबोट बनाया है जिसमें हमने कुछ सेंसर्स यूज़ किए हैं, लाइक गैस सेंसर्स,
फ्लेम सेंसर जो कि गैस को और हीट को डिटेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। और इसमें हमने जीपीएस एंड जीएसएम मॉड्यूल लगाया है, वो काम करता है जैसे ही यहाँ पर हीट और गैस डिटेक्ट होगी वो सीधा आपके मोबाइल फोन फायर फाइटर एंड पुलिस को विद लोकेशन मैसेज नोटिफाई कर देगा कि इस लोकेशन पे कोई फायर एक्सीडेंट हुआ है, जिससे आप लोग अलर्ट हो जाओगे और इमीडिएट एक्शन ले सकोगे इसके अगेंस्ट। थैंक यू। Any further delay, let's start Ideathon with first participant, and their idea is smart fabric and the future of health monitoring. Your clothing seamless monitors your health and well-being. Smart fabric integrates with your sensors and advanced technology. Basically, जो हमारा स्मार्ट फैब्रिक है उसमें एक ऐसी सेंसर्स है जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट है। उसमें आपका बॉडी मूवमेंट, बैड पोस्चर, फटीग, डिहाइड्रेशन एंड आपका सब कुछ हेल्थ मॉनिटर करेगा। द नीड फॉर स्मार्ट फैब्रिक, फर्स्ट continuous monitoring, early intervention and personalized insight. जो continuous monitoring है उसमें आपका कंटिन्यूस मॉनिटर करते रहेगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, एंड आपका जो हेल्थ डाटा है वो भी आपको शो करेगा ऐप के थ्रू। अर्ली इंटरवेंशन, इसमें क्या होएगा, आपको अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है आपको तो वो अर्ली डिटेक्ट कर देगा कि आपको पॉपअप हो जाएगा आपके फोन्स में कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। इवन जैसे अगर आपका बैड अब जो पोस्चर है वो दिन ब दिन खराब होते जा रहा है, लाइक इवन भी जब हम देखते हैं एल्डर पीपल को, उनकी जो बॉडी पोस्चर होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, आपको पहले ही बता देगा, आपको पहले ही रिकमेंड कर देगा कि आप प्लीज़ इसमें अपना काम कीजिए। पर्सनल इंसाइट्स क्या होंगे, आप खुद से अपने अलाउ कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं अपने ऐप्स के थ्रू कि आपको कैसा चाहिए, आपको क्या क्या अलाउ करना है, क्या क्या मॉनिटर करने के लिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, लैक ऑफ कंटिन्यू मॉनिटरिंग, इसमें क्या आएगा, जैसे ट्रेडिशनल मेथड है, हमारे जो वॉचेस होती है, जब स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं उसमें क्या होता है, आपके बहुत ही बेसिक थिंग्स होते हैं, बट हमारा जो है वो आपको बहुत सारे मॉनिटर करेंगे। लिमिटेड पर्सनलाइज्ड, even in watches there are limited things, but in the smart fabric there are unlimited things. फ्यूचर में एड ऑन भी होंगे। बैरियर्स टू एक्सेस, ये आपका कॉस्ट, एक्सेसिबिलिटी एंड यूजर फ्रेंडली होएगा। सॉल्यूशन स्टेटमेंट, सेंसर्स एंड माइक्रोचिप्स, जो आपके सेंसर्स एंड माइक्रोचिप्स होंगे वो साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स जैसे मैं आपको बताए थे, हेल्थ रेट, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर एंड मूवमेंट्स को डिटेक्ट करेगा। डाटा ट्रांसमिशन, आपके जो डाटा ट्रांसमिट होंगे जो आपके सेंसर से, जो आप टी शर्ट में पहना होगा जो सेंसर से, वो वायरलेसली होगा। कोई भी आपको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं कि अपने फोन से कनेक्ट कर रहे हो वायरलेस, नहीं, ये वायरलेस होएगा ब्लूटूथ से। एंड अलर्ट नोटिफिकेशन, आपको रेगुलरली अलर्ट नोटिफिकेशंस आएंगे कि आपको क्या किस चीज में आपको टेक केयर करना है, इन सब चीज का। What all does smart fabric monitors? First is heart rate. Heart rate, basically our sensors will be placed on the chest area, so it will monitor the heart rate, stress level. By monitoring the heart rate, it will monitor the stress level as well. Body temperature. Because the heart rate is being monitored, it will also monitor the body temperature of that person. Detecting health issues. Poor postures. It will monitor the poor postures as the sensors will be integrated on the back of the t-shirts. Dehydration. By monitoring the body temperature, it will also monitor the dehydration level of the users. Fatigue. As the dehydration level is being monitored, the fatigueness of that person or the user will also get monitored by it. Connected to mobile apps. It will provide real-time data visualization
as it will represent health data of the users on the mobile apps, personalized insights and recommendations. As the data is being shown on your mobile apps, it will provide you recommendations and insight where you are lacking. Seamless data sharing. The user can share the data on to the family members so they can monitor their health. Benefits of smart fabrics. Improve health management. As the data will be shared to your users on their mobile app, it will provide proactive health monitoring and enhance performance. By providing data on the mobile app, it will increase the performance of the individuals, increase comfort and safety. The sensors which will be used in the t-shirts will be very comfortable and easier to use, and it will provide safety to the users. टारगेट ऑडियंस, हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो मेनली एथलीट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो अभी हमारे अपने हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको अपनी मॉनिटरिंग करने के लिए हमारे फैब्रिक की ज्यादातर जरूरत पड़ सकती है। दूसरा न्यूबॉर्न बेबीज है, क्योंकि वो अपने आप को नहीं बता सकते कि हमारे अंदर क्या हो रहे हैं क्या नहीं हो रहा है, वो हमारा जो फैब्रिक होगा वो उसको डिटेक्ट करके आपको नोटिफिकेशंस देगा आपके मोबाइल ऐप्स पे। और एडल्ट्स लोग, जो हमारे ओल्ड पीपल्स होते हैं, उनकी हेल्थ कभी वो खुद ही ध्यान नहीं दे पाते कि वो कर क्या रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो हमारे को हमारे मोबाइल ऐप्स पे वो डिटेक्ट हो जाएगा। मार्केट स्ट्रेटजीज, जो हमारी मेन मार्केट स्ट्रेटजीज हैं वो टारगेट स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट है। जो हमारे मार्केट सेगमेंट है स्पेसिफिकली, जैसे हम किन से कनेक्ट करके इस चीज को आगे एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे हमारे हेल्थ प्रोवाइडर्स लोग हैं, जो टेक्नोलॉजिकल चीजें लॉन्च करते हैं, उनसे हम अगर कनेक्ट करेंगे तो हमारा फैब्रिक आगे तक जाके हमारे लोगों को पहुंच के उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट लाएगा। दूसरा है डेवलप्ड स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप, हम इनसे कोलैब कर सकते हैं। हम कोलैब कर सकते हैं अपने हेल्थ केयर प्रोवाइड से, फिटनेस कंपनी से जो हमारी आजकल नई नई चीजें लॉन्च कर रही हैं। प्रमोट इनोवेशन एंड वैल्यू प्रोपोर्शन, जो हमारा हाईलाइट होगा हमारे फैब्रिक में वो होगा बेनिफिट्स को, हमारे बेनिफिट्स को, जो भी हमारे बेनिफिट्स होंगे हमारे बॉडी में या डी बेनिफिट्स होंगे वो हमारे को बताएगा, वो हमारा मेन होगा कि हम इसको प्रमोट करेंगे। यूनिकनेस, हमारा फैब्रिक यूनिक क्यों है? हमारा फैब्रिक 3 चीजों से यूनिक है। पहले सीमलेस, वो जो हमारा सेंसर्स होगा वो इतना फैब्रिक में कंफर्टेबली हम प्लेस करेंगे ताकि किसी को फील ना हो, उसको कैरी करते समय किसी को ये ना लगे कि हमने एक्स्ट्रा कोई चीज कैरी कर ली है। वो बहुत कंफर्टेबली उस चीज को कैरी करेगा, पहन के कहीं भी जा सकता है ताकि उसको लगे कि हाँ हम सेफ भी हैं और हमारी चीज हम कैरी कर रहे हैं। दूसरा एनालिटिकल्स, जो हमारा बॉडी के अंदर रियल टाइम होगा, जैसे हमें अभी बैक पोस्चर में बैठे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है, पर वो हमारा सेंसर डिटेक्ट करके हमें नोटिफिकेशंस देगा। हमारे को अगर तबीयत खराब हो रही है तो हमें बताएगा कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो आपको वो चीज टाइम टू टाइम पता चलेगी। हमारा जो फैब्रिक है वो फ्रेंडली डिजाइन होगा, अलग अलग साइज में, अलग अलग डिजाइन्स में, जो आजकल मार्केट में चल रहा है। ऐसा नहीं कि अगर हमने उसमें सेंसर लगा दिए तो वो सिर्फ एक ही पैटर्न में होगा, डिफरेंट पैटर्न्स में होगा, और हम उसमें और इम्प्रूवमेंट लाएंगे फीडबैक्स ले लेके कि हमारा फैब्रिक और किस तरह से डिजाइन हो सकता है। हमारा रोड मैप 4 तरीकों से होगा: पावर मैनेजमेंट, यूजर एक्सपीरियंस, रीच एंड डेवलपमेंट एंड प्लॉट टेस्टिंग। पावर मैनेजमेंट में हमारा जो फैब्रिक होगा वो इलेक्ट्रिक जैसे होगा कि हम उसे चार्ज नहीं करना पड़ेगा, वो सोलर एनर्जी से, यूवी रेज से अपने आप, जैसे हम उसको पहन के बाहर ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो सोलर एनर्जी से चार्ज हो सकता है। यूजर एक्सपीरियंस, जो हमारा डिजाइन होगा वो हमारा जो डिजाइन उसमें हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उससे ये नहीं पता चलेगा कि अरे इसमें कुछ है, वो आपको की अपडेट देता रहेगा कि हाँ कुछ हमने कुछ स्टाइलिश पहन रखा है, बट हमें पता है कि हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है।
तीसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम इसमें कंटिन्यूअली डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स लाएंगे, लॉन्च करेंगे ताकि सबको सबकी पसंद का फैब्रिक मिलता रहे। तीसरा हम अपना चौथा प्लॉट टेस्टिंग, हम उसको टेस्ट करते रहेंगे अपने एथलीट्स पे या जो भी फिटनेस से जुड़े लोग होंगे, फीडबैक लेते रहेंगे कि हमें उसमें क्या चेंजेस लाने चाहिए, क्या चेंजेस नहीं लाने चाहिए। अब जैसे हमने वॉच लॉन्च कर दी, हमने उसका फीडबैक उतना नहीं लेते कि हाँ शायद यूजर को इस चीज की भी जरूरत है, बट हम उस चीज का ध्यान रखेंगे कि हम उसको कैसे कैसे यूज कर, जैसा हमारा फीडबैक आया कि आपको ये चीज इंप्रूव करनी चाहिए, हम उस चीज को इंप्रूव करेंगे हमारे प्रोडक्ट के बनने के बाद भी। और हमारा जो स्मार्ट फैब्रिक है वो फ्यूचर में हेल्प कर सकता है हमारी सबसे बड़ी चीज के लिए, हेल्थ के लिए। आजकल कोई भी अपनी हेल्थ पे ऐसे ध्यान नहीं देता है, जंक फूड भी खा लेता है, इधर उधर भी ऐसे ही बैठ जाता है, उठने लगता है, अनहाइजीनिक चीजें करता है। बट ये अगर फैब्रिक में है जो आपको पता भी नहीं चल रहा और आपको बीच बीच में बताता रहेगा नहीं आप ये चीज गलत कर रहे हो, उसको सही करना चाहिए। थैंक यू।